Good morning, students. Hope you all are well and fine. My dear students, in today's class, we are discussing a very interesting skit written by Munshi Premchand. So, the title is My Elder Brother, which is written in Hindi as Bade Bhai Sahab. So, this is English translated, and a very interesting topic in which you can know that hard work is as important as experience. Okay, so let's start our topic without any delay. My elder brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. So, this beautiful play is a conversation between two brothers, and they have respect and responsibility for each other. Okay? The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from the books in the school. So, every day we are not getting knowledge from the book only. Knowledge from the outside world, from the real life, is much more important than the bookish knowledge. This play is based on the famous story in Hindi Bade Bhai Sahab, written by Munshi Premchand. So, this play is originally written by Munshi Premchand in the language of Hindi, and the title of the play is Bade Bhai Sahab. But later it is translated into English, and the title of the story is My Elder Brother. So let's start. You can see that here is a beautiful picture, colorful picture. So the study table is there in between two brothers, elder brother and younger brother. Many books and globe are there on the study table. So the little Munna is doing some drawing activities, whereas elder brother is reading as many books as he could. Okay, so the scene one seems to be like this: a hostel room, two brothers aged 9 and 14 sitting at a study table. You know that Munna is younger one, so he must be aged 9 years old, and Bhaiya, who is older, he must be aged 14 years old. Okay, the elder brother Bhaiya is reading a book, and the younger one Munna is drawing pictures of birds, animals and beautiful other things. Okay, so here is a nice conversation. Wherever it is written Bhaiya, and a sentence in front of that is referred as the sentence spoken by भैया. ओके, जो भी लाइन लिखा हुआ है भैया के सामने, ये भैया के द्वारा कहा गया है, एंड मुन्ना के सामने जो भी लिखा गया है ये मुन्ना का आंसर है. सो ये कहानी है जिसमें भैया और मुन्ना के बीच बातचीत हो रही है, और कहानी के आकार में ये एक रोल प्ले भी है. मैंने आप लोगों को रोल प्ले करवाया था, फिर भी एक बार आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना इज टेलिंग दैट आई एम ड्राइंग. भैया अगेन स्पीक्स दैट व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग? मुन्ना टर्निंग अ पेल. इट मीन्स पीला पड़कर उसका चेहरे से जो हंसी थी वो उड़ गया, क्योंकि भैया बहुत क्रोधित होकर पूछ रहे हैं, आई वॉज प्लेइंग भैया
How can you sit with a book for hours together? Munna is speaking very gently. Now, bhaiya, that is because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Then Munna is telling that, Bhaiya, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy the poem several times in beautiful letters. यहाँ पे मुन्ना भैया को सवाल कर रहा है कि भैया आप मेरे से उम्र में 5 साल बड़े हो, लेकिन क्लासेस में आप मेरे से 3 क्लासेस आगे हो, लेकिन मुझे अभी भी ये जानना है कि आप एक शब्द को 20 बार से ज़्यादा लिखते रहते हो, एक सेंटेंस को 20 बार से ज़्यादा लिखते रहते हो, और ये जो पोएम्स वगैरह लिखा रहता है आपके बुक्स में, उसको देख देख कर सुंदर सुंदर राइटिंग में कई बार लिखते हो, ऐसे क्यों है? सो भैया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड प्ले, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। क्या तुम जानते हो इंग्लिश बच्चों का खेल नहीं है, तो ये इतना आसान भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर किसी को इंग्लिश में मास्टरी हासिल करनी है तो उनको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ोर्ट देना पड़ेगा। टू स्पीक और टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को अच्छे से बोलने के लिए तथा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन जब तुम्हें थोड़ा भी समय मिल जाता है तुम क्या करते हो? खेत की ओर भागते हो, खुले आसमान के नीचे खेलने के लिए दौड़ जाते हो, मैदान में चले जाते हो, है ना? प्ले मार्बल्स, कंचे के साथ खेलते हो, फ्लाई पेपर काइट्स, पतंग उड़ाते हो, और सीट आइडलिंग अवे विद द फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ मज़ा करने के लिए खाली बैठ जाते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते हो? सो अब देखते हैं आगे क्या है। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लग रही है, क्या हम लोग उधर चलें? भैया बोल रहे हैं, थोड़ा र्यूड होके बोल रहे हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है कभी मेले में जाते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या हॉकी खेलते हुए? तुमने कभी मुझे देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं कभी नहीं जाता हूँ वहाँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं तो ज़्यादा पसंद करूँगा वो भीड़ भाड़ में ना जाकर केवल अपने बुक के साथ बैठने के लिए। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, अब भी मुझे लगता है कि मुझे एक क्लास को 2 साल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन यू नो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक क्लास 1 साल का ही होता है ना? आप लोगों का शिक्षा वर्ष जो है वो अप्रैल से शुरू हो जाती है, अप्रैल 1 से आप लोग नए क्लास में चले जाते हो, फिर मार्च 31 तक वो क्लास की, अगले महीने की मार्च 31 तक वो क्लास की रिजल्ट आ जाती है, फिर आप लोग दूसरी क्लासेस में चले जाते हो, है ना बच्चों? डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप खेलते रहोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या और तुम पास हो जाओगी? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड एंड मनी, तुम सिर्फ पापा की मेहनत की कमाई को बर्बाद करते जा रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड शॉबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर
heard. So these are the voices that comes when someone cries. Okay, now Munna starts crying because elder brother scold him very rudely. मुन्ना फिर बोल रहा है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक टू होम. भैया मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, मुझे घर फिर चले जाना है. एज यू नो दे आर एनरोलिंग देयर नेम्स इन ए हॉस्टल. जैसे कि आपको पता है वे लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. तो इसी कारण मुन्ना को अपना परिवार बहुत याद आ गया होगा, है ना. जब आप लोग भी रोते हो तो आपको भी हर किसी की याद आ जाती है, पर्टिकुलरली आपके मम्मी पापा की, है ना बच्चों. भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग. अब बंद करो अपना रोना धोना. पुट एन आई स्माइल. जल्दी हंस लो. लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा और उसी के अनुसार तुम्हें काम करनी होगी. गेट अप एट डॉन. आपको क्या करना है कि सुबह ही उठ जानी है. टाइम देखो, टाइम कितने बजे उठना है. 6 AM वॉश योर हैंड्स. 6 बजे आपको हैंड वॉश करनी है. 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ना है. 8 to 9 AM मैथ्स पढ़नी है. 9 से 9:30 तक हिस्ट्री पढ़नी है. 3:30 बजे फिर आप लोग स्कूल आ जाते हो, है ना. देन ऑफ टू स्कूल. विद्यालय से आ जाना है. 5 to 6 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़नी है. एंड हाफ एन आवर फॉर स्टोलिंग. इधर उधर घूमने के लिए थोड़ा सा मौज मस्ती करने के लिए आपको आधा घंटे के समय दिया जाता है, ठीक है. 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ लेना, रचनात्मक लिखन जो होती है. देन डिनर कर लेना. 8 से 9 बजे तक ट्रांसलेशन करोगे. 9 से 10 बजे तक हिंदी पढ़ोगे और 10 से 11 बजे तक अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड. बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद फिर तुम कहाँ जाओगे? बेड पे चले जाना, वो भी रात के 11 बजे. ओके, क्या तुम लोगों को ये शेड्यूल अच्छा लग रहा है? मुन्ना फिर बोल रहा है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले. यहाँ खेलने के लिए समय कहाँ दिया हुआ है भैया? भैया बोल रहे हैं, प्ले खेलने का समय. व्हाट इज द नीड? जरूरत ही क्या है? मुन्ना अब बताओ मुन्ना, ये खेलने के लिए समय की क्या ज़रूरत है? मुन्ना बोल रहा है, ओह आई लव ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो and hututu sounds of kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. भैया आपको पता है, ये हरियाली भरे खेत में दौड़ना, खुले हवा में सांस लेना और फुटबॉल की तरह उछलना, पतंग उड़ाना, हुतुतु का साउंड करके कबड्डी खेलना और वॉलीबॉल खेलना, ये सब मुझे एक चुंबक के जैसे अपने पास बुला लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं. तो मुझे जब तक मैं ये हरे मैदानों में खेलता रहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ भैया. सो इसी तरह सीन 1 जो है वो एंड होती है, ठीक है. तो अगला वीडियो में हम सीन 2 के बारे में देखेंगे. थैंक्स टू यू.